Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start off with chemical control and integration, right? In the very previous video, I have explained you about neurons, about how the rapid impulse transmission inside our body occurs and how does this conduction actually takes place. It is all about the electric impulse, it is all about the message conduction, it is all about the rapid point-to-point interaction that we have been talking about, all about the organs and the organ systems. Now this time, in this particular chapter, we are going to talk about chemicals. ठीक है, जो केमिकल्स आपके बॉडी से निकलते हैं, राइट, ऑल द केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी इटसेल्फ एंड दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट टारगेट साइट्स फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड. ठीक है, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड, मेक यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड. एक इंसान है, राइट, देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी, राइट. अब देयर इज ऑल्सो अ पर्सन सी इन दिस सिनेरियो and they have been made as a team, right? Now the person A and the person B are good friends with each other, right? And they have to complete a particular teamwork. They have a particular task to complete. They already have a good coordination. They already have a vibe together, but they also need to coordinate with the delta C, the person C, right? So they'll have a different coordination among all the three, right? All the three will have a beautiful connection so that the teamwork could get complete and they can submit their project on time, right? So this is what I can very lamely make you understand what the coordination terms mean. मतलब कि एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे को coordinate करना to make it like reachable to you, to make it understandable to you, it is coordination. And integration का मतलब होता है summing up. You must have understood integration. आप basic physics में पढ़ते हो if you don't have maths, but people who have maths can completely understand कि हम integrate करते हैं किसी भी चीज को from particular limit to a particular limit, even if it's not, if it's supposedly it's indefinite integral, then also हम कहते हैं कि भाई ये जितना भी इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ना समिंग अप करना. ठीक है, तो भाई क्या है समिंग अप करने का, यहाँ पे क्या तजुर्बा है, क्या मतलब है कि बेटा आपका केमिकल बॉडी से रिलीज होता है, एक पर्टिकुलर साइट पे जाता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाता है. क्यों करवाता है? ताकि आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से काम कर पाए. ठीक है, अब ये एक तरीके से काम करना चाहती है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी किस तरीके से? कोऑर्डिनेट करके, राइट, कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करना चाहती है, कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करना चाहती है, क्लियर, थ्रू द केमिकल्स इटसेल्फ. ठीक है, दिस इज व्हाट द चैप्टर नेम इज ऑल अबाउट. ठीक है, इसी को हम चैप्टर का नाम दे देते हैं. Now, you have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. Did we actually study about this? Yes, of course. कि rapid coordination होता है. Yes, ma'am. Rapid coordination तो definitely होता है. किसके बीच होता है? Organs के बीच होता है क्या? Yes, of course. Organs के बीच में होता है. Organs के बीच में होता है. Yes or no? Of course, organs के बीच में होता है. Then the neural coordination is fast, but it is short-lived. As the nerve fibers do not intervene, all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated. ठीक है, हमेशा नर्व फाइबर्स जिंदा नहीं रहेंगे, हमेशा it is not going to be a long lived situation. हर समय हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा बाड़ी, हर समय हमें क्या करना पड़ेगा, इंपल्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा एट पर्टिकुलर साइड ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट हो पाए, राइट. लेकिन हमें कुछ ऐसा तो चाहिए होगा कि एक बार डाले और वो करते रहे काम, वो इस पर्टिकुलर टारगेट साइड पे काम करते रहे, हमको जानबूझ के बार बार काम ना करना पड़े भाई. ठीक है, काम से तो सब चोरी खाते हैं भाई, है ना. अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड. ऑफ कोर्स दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स. किससे होता है? क्या ये हार्मोन से होता है क्या? Yes or no? Yes, of course. Hormones does this. Okay. Now the neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. हमारा endocrine system की क्या काम है? देखो सी, हमारा जो endocrine system होता है, ठीक है, ये ductless glands होते हैं. ठीक है, ये क्या होता है बच्चा बाड़ी? डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. इनमें डक्ट जो होता है ना वो नहीं प्रेजेंट होता है, डक्ट इज एब्सेंट. एंड ये हार्मोन जो है कंप्लीटली बाथ करा देते हैं. कहां पे बाबू? ऑर्गन पे कंप्लीटली क्या करा देते हैं? बात करवा देते हैं. किसको? ऑर्गन को, राइट. तो ये डक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे ऑर्गन का डायरेक्ट बाथमेंट होता है. तो ये एंडोक्राइन सिस्टम और आपका न्यूरल सिस्टम एक दूसरे के साथ फंक्शन कोऑर्डिनेट करके हमारा हार्मोन प्रोड्यूस कराता है. आप पढ़ोगे हार्मोन्स को आगे आने वाले लाइक आई गेस पैराग्राफ्स में कि हार्मोन्स क्या होता है बच्चा पाड़ी? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट. मतलब कि इसमें ना, जस्ट बेयर विद द हैंडराइटिंग, इसमें ना न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है, दे एक्ट एज बेसिकली योर मैसेंजर्स. Why bear with my handwriting? Because I'm writing with a mouse. Okay, so मैसेंजर की तरह काम करता है. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स. बहुत थोड़ा ट्रेस अमाउंट है कि नहीं? ऐसे तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इट इज अ बिग अमाउंट, बट ऐसे ऑफ कोर्स छोटा अमाउंट है. यस और नो? सो बेसिकली दे आर गोइंग टू कैरी आउट योर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. यस और नो? ऑफ कोर्स यस मैम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स. क्या पढ़ने वाले हम लोग? पढ़ने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में. ठीक है, चलो. Endocrine glands lack ducts and are hence called as ductless glands. क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ पे बताई थी बातें? Yes, of course. क्या बताई थी बातें? कि ये जो होता है डकलेस ग्लैंड होता है. ये क्या होता है बेटा? डकलेस ग्लैंड होता है, बताया था मैंने. ठीक है.
The secretions are called as hormones. The classical definition of hormone as a chemical produced by the endocrine gland and released into the blood and transported to a distantly located target organ has a current scientific definition. Okay, so we have got a definition and let us understand this. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and they're produced in trace amounts. ये बहुत ही important है, ये बहुत important है, ठीक है. Hormones होते हैं, तीन चीज याद रखने वाली चीज है hormones की. ये फर्स्ट जो चीज हमें याद रखना है that is it is a non-nutrient chemical. ठीक है, क्या है बच्चा पाड़ी? Non-nutrient है, non-nutrient chemical है and it is going to act as intercellular what messenger, right? ये एक intercellular messenger की तरह काम करेगा. एंड तीसरा जो चीज हमें याद रखनी है वो है trace amount. ठीक है, ट्रेस अमाउंट में मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये पहला नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. ठीक है, दूसरा इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड तीसरा ट्रेस अमाउंट. यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वी यूज्ड टू गेट दिस क्वेश्चन इज वेल कि इसमें पूछा जाता था, वी यूज्ड टू गेट दिस कॉलम, मैच द कॉलम वाला चीज. ठीक है, इसमें क्या पूछते थे हमसे कि मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हार्मोन लिखा रहता था. ठीक है, वी यूज्ड टू गेट दिस एज हार्मोन कॉलम ए में एंड देन वी हैड टू मैच इट. देयर वर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो हमें बता रहा था कि इनमें से कौन सा. तो ये तीन जहां पे भी हम लोग हमें दिखता था एबीसीडी में कहीं पे भी हम इस पे टिक करते थे, नॉन न्यूट्रिएंट पे, इंटरसेल्युलर पे एंड ट्रेस अमाउंट पे. क्लियर? The new definition covers a number of new molecules in addition to hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. Okay? Thereafter, we are going to study about human endocrine system. But first of all, let us understand this. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे इनवर्टिब्रेट्स में, किसमें बच्चा पाड़ी? इनवर्टिब्रेट्स में हमें देखने को क्या मिलता है कि इनवर्टिब्रेट्स का काफी ज्यादा सिंपल क्या होता है? ES होता है, एंडोक्राइन सिस्टम. लेकिन जब हम बात करते हैं खुद की, दैट इज वर्टिब्रेट्स की, जिसमें वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ES आपको देखने को मिलेगा. किसमें? वर्टिब्रेट्स में. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ, क्यों? थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ केमिकल्स, थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ हार्मोन्स, थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ दिस इंटरसेल्युलर मैसेंजर काम करने वाली है. ठीक है, टू प्रोवाइड द कोऑर्डिनेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसका सर अलग है. अच्छा, ओके, ठीक से बनाइए मैम. ओके, तो ये बाल है इसका, ये चेहरा, हैंड्स एंड द लेग्स. क्लियर? हार्मोन्स, कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. So human endocrine system, basically, see here the location of the endocrine glands. This is your hypothalamus, right? You can open your NCRTs. This posture is your hypothalamus. This one is your pituitary. Here, just below the hypothalamus and above the pituitary lies the pineal. Here is the thyroid and the parathyroid, right? Here is the T, which is your thymus. This one is your pancreas, adrenal glands over the kidney, and here is ovary in case of female and testis in case of male. Clear? The endocrine glands and hormones producing diffuse tissues or cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. Here the endocrine glands, or we say it to be the hormones, they both of it are going to be producing diffuse tissues or cells located in different parts of our body. They are going to constitute the whole endocrine system of our body. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, gonads. Gonads here itself means what? The ovary and the testis. They are together called as your GONADS, which is your gonads, right? Testis is going to be in your male and ovary is going to be in your female. Are the organized endocrine bodies in our body, right? Endocrine bodies in our body. In addition to these, some other organs, example gastrointestinal tract, which is GIT, liver, kidney, heart, also produces the hormones, right? There are different hormones which are produced by different tracts, right? Of course, GIT is going to produce different tract, right? Liver is going to, different hormone, right? Different hormone is going to be released by the GIT itself. Heart is going to release different hormone. The kidney is going to produce aldosterone, different types of hormones. You are definitely going to understand vasopressin and all of that. Liver is also going to produce bile and other juices and other hormones which are actually responsible for the whole physiology of your body, right? A brief account of the structure and the functions of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following sections, right? So basically यहाँ पे तो हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में देखा है कि हाँ भाई यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है, हाँ भाई यहाँ आपका पिनियल है, हाँ भाई यहाँ आपका पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पैंक्रिया है, एड्रिनल है एंड द गोनाड्स ऑफ कोर्स, राइट? लेकिन हमें एक्चुअल में वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम थोड़ा सा डिटेल में, तो डेफिनेटली, राइट? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? The hypothalamus. As you know what? The hypothalamus is the basal part of diencephalon, forebrain, and it regulates a wide spectrum of body functions. पहले तो पहला ही 3-4 लाइन में it is going to have a lot of questions. They will ask you questions from this section, and that is hypothalamus कहाँ present है? सबसे पहले तो hypothalamus जो present है, brain जो है आपका, एक सेकेंड, ब्रेन जो है बच्चा पाड़ी 3 प्रकार में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. बी जो है FMH में विभाजित है, ठीक है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, राइट? Now, the forebrain, basal part of the forebrain is going to constitute your diencephalon, right?
your forebrain is going to have the basal part of the forebrain is going to have your diencephalon, and ये जो diencephalon है बच्चा पाड़ी, that is going to constitute, basal part of the diencephalon is going to constitute your hypothalamus. का क्या constitute करेगा? That is going to be your hypothalamus. अब देखो ये जो बच्चा पाड़ी 1 सेकेंड, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये जो है मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस. अ लॉट ऑफ बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय हाइपोथैलेमस ओनली. ठीक है, तो आई गेस इट्स क्लियर. ब्रेन तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन का बेसल पार्ट कंस्टिट्यूट्स द डायसेफलॉन, उसका पार्ट हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस. क्लियर है. यस. ओके. It contains several groups of neurosecretory cells called as nuclei which produces the hormones. Yes, ये काफी बार as a question आया है. This is very important chapter, you know, in every line of NCERT. See here, starting from here itself. पहली में देखो यहाँ short-lived cellular function, hormones, neural and endocrine system constitute the physiological function. Hormones ये 3 प्रकार, मतलब 3 important points. Then thereafter coordination के बारे में vertebrates में सब ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है. ठीक है, thereafter इसमें भी यहाँ पे भी देखो कौन सा apart from the, you know, the pineal, hypo, pituitary, thyroid, parathyroid, thyma, pancreas, adrenal, all of this. We have got GIT, liver, the kidney and the heart. So all of it. तो ये सारा का सारा line they are very very important. You can understand this, right? Now यहाँ पे भी बात की हम लोगों ने, तो पहला ही 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, which is forebrain is going to have the basal part of the forebrain is going to constitute the diencephalon, which actually has the hypothalamus in it. The hypothalamus is going to constitute for the several groups of neurosecretory cells which are called as nuclei, and this nuclei is responsible for producing your hormone only. ठीक है, they are going to produce your hormones, which is your nuclei. It is a group of several groups of neurosecretory cells which is going to be present inside your basal part of the diencephalon, which has your hypothalamus. Clear. Right. Now these hormones, they are going to regulate the synthesis and the secretion of the pituitary hormones. ठीक है, यहाँ पे जो hormones produce होगा, कहाँ पे बच्चा पार्टी? हाइपोथैलेमस में. ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या प्रोड्यूस होगा? हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और वो क्या रेगुलेट कराएगा? सिंथेसिस एंड सेक्रेशन. किसका? पिट्यूटरी के हार्मोन का. क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? एक सेकंड. However, the hormones produced by hypothalamus are of 2 types. The releasing hormone which stimulates the secretion of the pituitary hormone. मेरी बात को देखो कितना important line सब है ना, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि सारे का सारा line को, you know, just highlight every line because it's very very important. See here what they are trying to make you understand कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन 2 तरीके का है. एक तो आ गया बच्चा बॉडी रिलीजिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. अब देखो 2 प्रकार में बांट दिया है, समझाते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि हार्मोन्स जो है, किसके हार्मोन से बच्चा बॉडी, यहाँ पे हम किसके हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं? हाइपो मतलब हाइपोथैलेमस. 2 प्रकार, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन RH और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन IH. रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी हार्मोन के रिलीजमेंट के, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज कराने में RH इन्वॉल्व होगा, है ना. और इनहिबिटरी हार्मोन सबने पढ़ा है भाई, एंजाइम वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सबको पता है इनहिबिटर्स क्या होते हैं, सबको पता है, यस और नो? नहीं पता है, I'll make you understand. I am going to continue the series. I am going to make you people understand. इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब होता है कि वो इनहिबिट करेगा, मतलब कि रोकेगा. फॉर एग्जांपल, हर सबके घर में मम्मियाँ होती हैं, ठीक है, सबके घर पे बच्चे होते हैं, ठीक है, सबके घर पे नहीं होते, जिनके बच्चे हैं तो मम्मी बाहर जाने से मना करती है रात को, राइट. ये इनहिबिशन है, यहाँ पे इनहिबिशन है. लेकिन हाँ, ये कुछ काम आ जाएगा मम्मी को याद में तो मम्मी भेज देंगी, उस समय इनहिबिट नहीं करेंगे, उस समय आपको स्टिमुलेट करेंगे, हाँ भाई जाओ लेके आओ, काम करके आओ. दैट इज योर रिलीजिंग हार्मोन. आपका उस समय हार्मोन रिलीज कराने के लिए, मम्मी काम करवाने के लिए रिलीज करेगी, स्टिमुलेट करेगी आपको कि जाओ बच्चे करके आओ काम. ठीक है, तो पिट्यूटरी, मम्मी का दिमाग कहेगा कि हाँ चलो रिलीजिंग हार्मोन को हम रिलीज करा रहे हैं. आपका हाइपोथैलेमस जो है उस समय रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, एंड पिट्यूटरी हार्मोन जो है आपका हार्मोन रिलीज करके आपको ये काम बोलेगा कि हाँ बच्चे टारगेट साइड पे जाओ, दुकान जाओ, सामान लेके आओ. लेकिन जब इनहिबिटरी हार्मोन की जहां तक बात आएगी, तब उस समय तो मम्मी पार्टी जाने से तो मना कर देगी. दैट इज योर इनहिबिटरी हार्मोन. मम्मी पार्टी जाने से मना कर देती हैं. ठीक है, ये चीज तो होता है सबके घर पे. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन व्हिच इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. ठीक है, stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotrophins. Okay, GnRH जो होता है growth gonadotrophin releasing hormone होता है. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of the growth hormone from the pituitary. Example दे दिया और कुछ नहीं. Example है यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन का बेस्ट एग्जांपल. इफ समबडी आस्क यू, GnRH, N छोटा होता है हमेशा, इट्स नॉट अ टाइपो, इट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. हमेशा N छोटा, R बड़ा, H बड़ा. ठीक है, RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, Gn का मतलब गोनाडोट्रोफिन. ठीक है, G and N. क्लियर है? चलो अच्छा, IH की बात करें, दैट इज योर इनहिबिटरी हार्मोन बच्चा पाड़ी. तो इनहिबिटरी हार्मोन का बेस्ट एग्जांपल इज योर सोमैटोस्टैटिन. क्या है? सोमैटोस्टैटिन. ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसके? पिट्यूटरी हार्मोन के, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज होने में. ठीक है, इसको क्या करेगा? बोलेगा बाबू नहीं जाओ. ये बोलेगा जाओ. और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा फर्दर? गोनाड्स को. गोनाड्स क्या होते हैं बेटा? टेस्टिस किसमें? मेल्स में, राइट. और ओवरी किसमें? फीमेल में. क्लियर इतना तक? नाउ these hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. अरे यार सब पढ़ के आए ना, न्यूरॉन चैप्टर सब पढ़ के आए, सब बहुत तेज है. ये इसको नर्व एंडिंग्स कहते हैं, साइनेप्टिकल एरिया को.
These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the functions of the anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. Posterior होता है पीछे, anterior होता है आगे. ठीक है, पोस्ट हमेशा समझो ना, पोस्ट पीछे होता है. एंड छोटी एंट है, आगे जाएंगी. कैसे हमें बचपन में होता था, छोटे हाइट के बच्चे को आगे लगाया जाता था, लंबे हमेशा आई यूज्ड टू बी एट द बैक. ठीक है, सो छोटा है भाई, एंट छोटा, एंटीरियर आगे, एंट इज छोटा, एंटीरियर इज आगे, बट पोस्टीरियर पोस्ट बहुत बड़ा. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी पीछे. And it is going to be indirect neural regulation of the hypothalamus. बड़ा बच्चे को तो भाई मम्मी अपने कंट्रोल में रखती है, तो it is definitely going to be under neural regulation of the hypothalamus. Hypothalamus is referred to here as मम्मा. ठीक है, चलो इतना तक आइडियाज क्लियर है. फिर से एकदम संक्षेप में बता रहे हैं, हाइपोथैलेमस कहाँ पाते हैं हम लोग. चलो एक सेकंड, लेट मी जस्ट एकदम यूनिक कलर है ये, यहाँ पे यूज नहीं है इसलिए. हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है बच्चा बड़ी, बेसल पार्ट में. कहाँ पे, डायसेफ्लॉन कहाँ पे, फोर ब्रेन के पास. ठीक है, तीन चीज यहाँ पे बता दिए. आगे रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम, अगेन चौथा चीज हो गया. यहाँ पे पांचवा चीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम न्यूक्लियाई का नाम दे दिए हैं. और न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है. आई एम राइटिंग द नंबर ऑफ द पॉइंट्स दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. सेक्रेशंस जो होता है हाइपोथैलेमस का दो तरीके का होता है. रिलीजिंग सातवां, स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी को. आठवां इनिबिट करेगा हार्मोन. नौवां किसको, पिट्यूटरी को. 10वां, ठीक है, एग्जांपल जीएनआरएच. 11वां एंड स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस को, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स. ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन में 12वां क्या करेगा बच्चे, इनिबिट करेगा किसको, ग्रोथ हार्मोन का. किसका, पिट्यूटरी का. 14 hormones originating in the hypothalamic neurons, axons and released from the nerve endings. 15वां इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, posterior pituitary is under the neural. हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. ठीक है, कौन सा पिट्यूटरी, द posterior pituitary is under the direct regulation of neural regulation of hypothalamus. डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन. ठीक है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है किसका, posterior pituitary का. posterior pituitary का डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है. एंड दिस माय डियर इज गोइंग टू बी योर 16वां इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर, 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन द हाइपोथैलेमस का पार्ट. ठीक है, हाइपोथैलेमस एक बहुत ही छोटा यहाँ पे देखो पैराग्राफ है, लेकिन 16 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्मॉल पैराग्राफ. सो एनसीईआरटी ना छोटी चीज लिखती है, मतलब 2-4 लाइन में खत्म कर देती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे इनफैक्ट हाइपोथैलेमस जो है एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इन द हायर क्लासेस, इवन इन एमबीबीएस, राइट, तो आप पढ़ोगे हाइपोथैलेमस इतना छोटा चीज नहीं होता है. इट इज वेरी लार्ज. न्यूरोसाइंस इज वेरी वास्ट. एमबीबीएस में यू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो न्यूरोसाइंस इज वेरी हार्ड. ठीक है, बट हियर दे हैव जस्ट ट्राई टू गिव यू अ स्किम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, वेरी ऊपर से दे हैव गिवन. ठीक है, तो ये बहुत मेजर नहीं है, लेकिन जो भी चीज यहाँ पे मेंशन्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेजर है. एंड दे कैन आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. दीस 16 पॉइंट्स हैव टू बी रिमेंबर्ड बाय यू. दे कैन आस्क यू न्यूमरस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. क्लियर है? इतना तक सब कुछ क्लियर है. चलो अब बात करने वाले हैं हम किसके, द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. मास्टर ग्लैंड. अब क्यों कहते हैं बाबू मास्टर ग्लैंड, क्यों कहते हैं, चलो हम ये पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका. ये जो है ना, ये एक सेकंड, हाँ, ये जो है ना पिट्यूटरी एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट. पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखते होगे ब्रेन जो है ना बच्चा, ब्रेन जो है ना उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं अंडर अ स्कल. ठीक है, तो पिट्यूटरी को भी तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. यस और नो, प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये एक बोन में प्रेजेंट होता है, बोनल कैविटी होता है बेसिकली. इसको हम कहते हैं बेटा सेला टर्सिका. क्या कहते हैं बच्चा बड़ी, सेला टर्सिका. एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. ठीक है, ये एक स्टॉक से अटैच है. दिस इज स्टॉक, राइट. सो दिस इज अटैच्ड बेसिकली बाय अ स्टॉक. इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. ठीक है, देखो पिट्यूटरी दो में, एडिनोहाइपोफाइसिस, एक सेकंड, एडिनोहाइपोफाइसिस फाइसिस मतलब विभाजित होता है बेसिकली. एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है बच्चे, न्यूरोहाइपोफाइसिस. क्लियर है? तो एनाटॉमिकली, ठीक है. नाउ adenohypophysis is consist of two portions, pars distalis and pars intermedia. The pars distalis region of pituitary, commonly called as anterior pituitary, produces growth hormone GH, prolactin PRL, thyroid stimulating hormone TSH, adenocorticotropic hormone which is ACTH, luteinizing hormone which is LH, follicle stimulating hormone which is FSH, and pars intermedia secretes only one hormone which is MSH, which is melanocyte stimulating hormone responsible for your skin color. Anyways, चलो बता दे क्या बताना चाह रहे हो बाबू, ये क्या बताना चाह रहे हो. चलो ठीक है, तुम्हारा पिट्यूटरी जो है ना बेटा एनाटॉमिकली ना दो पार्ट में बांटा हुआ है, वो है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. ठीक है, एनाटॉमिकली रिमेंबर दिस, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन. एडिनो एंड न्यूरो. एडिनोहाइपोफाइसिस फर्दर क्लासिफाइड है दो पार्ट में, व्हिच इज पार्स यहाँ पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. आज ठीक से लिखा नहीं रहा मेरे से, रिटन सो मच टुडे ऑलरेडी. पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, पार्स डिस्टालिस इज नथिंग बट जस्ट योर, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, pars distalis, pars intermedia. Pars distalis region of pituitary commonly called as your anterior pituitary. क्या बेटा, anterior pituitary, right? And pars intermedia is going to produce your MSH, which is your melanocyte secreting hormone, right? Stimulating hormone. And your anterior pituitary क्या करेगा, anterior pituitary GH produce करेगा, growth hormone. PRL produce करेगा, prolactin hormone, right? फिर आपका produce करेगा LH, luteinizing hormone, right? फिर क्या produce करता है, क्या करता है, adenocorticotropic hormone, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ठीक है,
एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय योर ओवरी, FSH, LH, FSH, ये सब प्रोलैक्टिन तो मेमरी ग्लैंड्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड्स, ACTH, इट्स बाय योर kidneys, adrenal glands. Now, basically adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, the luteinizing hormone, the prolactin, the growth hormone, they're all produced by your anterior pituitary. कहाँ लिखा है मैंने? हाँ, anterior pituitary, which is your pars distalis. But the pars intermedia, देखो सब याद रखो कि किसके अंतर्गत आ रहे हैं हम. This one, adenohypophysis. Adenohypophysis दो प्रकार में बटल है बेटा, बटल है, which is your pars distalis, pars intermedia. Pars distalis जो होता है वो anterior pituitary होता है बेसिकली, GH, PRL, LH, ACTH, FSH प्रोड्यूस करेगा. और ये जो है ना, ये सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस कराता है, विच इज योर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट जो होता है बेसिकली मेलेनिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर. जिसमें मेलानोसाइट ज्यादा होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर नेग्रो. ये तो भाई जेनेटिक्स का भी पार्ट हो जाएगा, नेग्रो, देन एल्ब्यूगो, ठीक है, फिर यू नो इंटरमीडिया. सो बेसिकली ये जो भी चीज़ है ये सब तो हम जीन्स में पढ़ेंगे, वैसे जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में. यहाँ पे तो डोमिनेंट रिसेसिव का कंडीशन हम यहाँ पे इसको स्टडी नहीं कर सकते, बट हाँ मेलेनिन है, इतना समझो, MSH मेलेनिन प्रोड्यूस करेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर, इतना तो सभी को पता है, ठीक है. However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. हाँ, दोनों अलग है, नो मैटर व्हाट, ये चीज़ मेरे को बताना है कि दोनों अलग चीज़ है. लेकिन हमारे अंदर ना इन द ह्यूमंस यू विल सी pars distalis, pars intermedia में खास हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मर्ज्ड है. तो उसको विभाजितानी मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना टफ हो जाता है. इज ऑन अ टफर साइड, इट्स नॉट हार्ड, बट ऑफ कोर्स दे आर कंप्लीटली मर्ज्ड विद ईच अदर. नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस, व्हिच इज pars nervosa, is also known as posterior pituitary, stores and release two hormones, which is oxytocin and vasopressin, ठीक है, which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axillary to neurohypophysis. ठीक है, अब देखो. I will create two parts of this chapter, क्योंकि हर पार्ट को ना अच्छे से you will have to understand. I'll be dealing with up till here in the very first part. pineal gland के लिए हम second part बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक मैं समझा दे रही हूँ. चलो अच्छे से पढ़ो. अब देखो, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसको हम नाम दिए हैं पार्स नर्वोसा का. अब ये पार्स नर्वोसा जो है बच्चा पढ़िए क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और ये ना दो चीज प्रोड्यूस करेगा. क्या दो चीज प्रोड्यूस करेगा? देखो, दो चीज जो ये प्रोड्यूस करने वाला है वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एंड वासोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ये दो चीज कौन प्रोड्यूस करता है? पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम दिया गया. फिर से समझाएंगे, कोई बात नहीं है. एनाटॉमिकली दो पार्ट, क्या? एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्लियर? एडिनोहाइपोफाइसिस दो पार्ट. क्या पार्ट? दो पार्ट. पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया. पार्स डिस्टालिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम दे चुके हैं. क्या प्रोड्यूस करेगा? GH, PRL, LH, ACTH, FSH, ठीक है. ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है. अब देखो, पार्स इंटरमीडिया MSH प्रोड्यूस करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा मेलेनिन, स्किन कलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, दिस इज समथिंग एल्स, ओके. एडिनोहाइपोफाइसिस डन. चलो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कंडक्शन. दो हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन. क्या क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर हो गया? Over secretion of GH stimulates abnormal growth of the body, leading to gigantism, and low secretion of GH results in static growth, resulting in pituitary dwarfism. Okay, see, किसी भी चीज का ना, हर चीज का ना मात्रा होता है. सब बच्चे जिम तो जाते होंगे, मोस्टली नॉट सब. तो ये बंदा अगर जिम एक साल के लिए जाना बंद कर दे, फॉर 1 year, एक साल के लिए जिम जाना बंद कर दे, व्हाट विल हैपन? ही विल ग्रो जाइंट, राइट? अरे यहाँ पे ये GH की कोई बात नहीं हो रही है, अभी आई एम जस्ट टॉकिंग थोड़ा सा नॉर्मली. तो बहुत इट विल बी ओबेस कंडीशन, राइट? ओबेस कंडीशन, व्हाट हैव आई रिटन? Okay, it will be what? It will be obese condition. Obese condition. तो हाँ, कभी कभी छुट्टियाँ you take from the gym itself, right? From the gym you take छुट्टी. बट अगर लंबा टाइम के लिए हो जाएगा, for anything in excess results in very poor thing. ठीक है, चाहे वो कम भी कर दो, एकदम जाना है बहुत ज़्यादा कम कर दो तब obese हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे you will be excessively thin. Until unless you just follow a diet, you be consistent, everything it's good. But if you just be only in gym, तब भी तो खराब है. तो किसी भी चीज़ का एक्सेस होना वो क्या होता है बच्चे? गलत होता है. यहाँ पे भी हम यही समझाना चाह रहे हैं. ओवर सेक्रेशन जो होता है GH का, मतलब ग्रोथ हार्मोन का, abnormal ग्रोथ दिखाएगा. चाहे जाइगेंटिज्म होगा, चाहे स्टंटेड ग्रोथ होगा. स्टंटेड ग्रोथ मतलब ड्वार्फ रह जाएगा बच्चा, लंबा ही नहीं हो पाएगा, कुछ उसका ग्रोथ ही नहीं देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ दिख जाएगा, ठीक है. प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. जब माँ प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, देयर इज, ये तो बहुत डिफरेंट चैप्टर ही है बेसिकली, इसको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे. इस चैप्टर को काफी मजेदार चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो PRL जो है वो आपके लेवल पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन योर लेवल, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. PRL प्रोड्यूस होता है जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, और ये जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल होगा. मैमरी ग्लैंड के क्या होगा? मैमरी ग्लैंड के क्या ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, जब आप प्रेग्नेंट होगी. TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड में प्रोड्यूस करेगा ऑफ कोर्स. ACTH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल ग्लैंड, आई जस्ट सेड दैट.
कॉर्टेक्स देखो इनर मेड्यूलरी रीजन होता है, रेज ऑफ इनर मेड्यूलरी रीजन होता है, और बाहर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ये बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। एलएच एंड एफएसएच स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाड्स होते हैं, मैंने ये बताया भी है पहले यहाँ पे, गोनाड्स दे आर गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है। एलएच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ये स्पर्म वाला चैप्टर में जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, द नेगेटिव फीडबैक जो यहाँ पे जाता है एंड एवरीथिंग, द एक्टिविटी ऑफ एलएच एफएसएच सब चीज, नेगेटिव फीडबैक देन पॉजिटिव फीडबैक एवरीथिंग, हम लोग वो पूरा एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में वहाँ पे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये जान लो कि एलएच के सिक्रीशन से एंड्रोजन टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है इन मेल्स। एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है किसके थ्रू? एलएच एंड एफएसएच के थ्रू, एंड्रोजन्स एफएसएच। एंड इन फीमेल्स एलएच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स व्हिच इज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल के बाद आता है, जहाँ पे काफी सादा फॉलिकल्स जब आफ्टर टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है, oocyte कंडीशन एवरीथिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इस चीज को, तो वो ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, ठीक है। एंड इट मेंटेन्स द कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर एवरीथिंग, मतलब द येलोइश स्ट्रक्चर व्हिच इज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता व्हिच इज अ व्हाइट स्ट्रक्चर, दैट इज अनदर थिंग, ओके। सो बेसिकली हियर दे मेंटेन, हु मेंटेन? द एलएच मेंटेन्स। मैंने काफी ज्यादा इसमें आई गेस आई हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ chaos here in. Still, you guys have NCERT, just mark it down there. LH is going to, secrete hormones called androgens, which is going to be responsible for spermatogenesis in case of what? In case of male. But in case of the female, basically here it is going to induce the ovulation of fully mature follicles, graphene follicles, and maintains the corpus luteum formed from the remnants of the graphene follicles after ovulation. FSH stimulates growth and development of ovarian follicles in the females, and MSH acts as melanocytes, melanin containing cells. ये तो मैंने बता दिया. And regulates the pigmentation of the skin. Pigmentation मतलब color बताता है basically. Oxytocin acts as smooth muscles of our body and stimulates their contraction. In females, it stimulates a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth. Yes, oxytocin जो है ऑक्सीटोसिन हो गया, रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो वजाइना जो है इट हैज टू गेट ओपन, इट हैज टू गेट वाइडन अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने के लिए, ऑफ कोर्स फॉर द चाइल्ड बर्थ टू हैपन। सो in females it stimulates a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth, and the milk ejection from the mammary gland. Vasopressin acts as mainly at the kidney and stimulates the resorption of water and electrolytes by the distal tubules. Here they have tried to explain about the oxytocin. Oxytocin का काम सिर्फ childbirth के लिए नहीं बल्कि milk के ejection from the nipples of the mammary gland, here also the milk is going to be ejected out. तो इस चीज के लिए भी oxytocin is responsible for the vaginal enlargement, also the oxytocin is responsible. Now when we talk about the vasopressin, it is going to act as a kidney and stimulate this resorption of water, electrolytes also, right, by the distal tubules which is your DCTs and all, right, and thereby reduce loss of water through urine diuresis. तो loss of water अगर होता है, loss हो जाता है किसका? पानी का, your H2O, very important for your body to keep hydrated. अगर वो नहीं हो रहा तो it will cause diuresis. तो उस चीज के prevention के लिए we have the vasopressin of course, and hence it is called as antidiuretic hormone or antidiuretic factor, which is your what? Antidiuretic factor. ये क्वेश्चन काफी फेमस है, तो you should remember कि antidiuretic factor कौन है? Vasopressin is your antidiuretic hormone, antidiuretic factor. Clear? So this is all what we studied about the pituitary gland, and this is how we need to study. Okay, fine. यहाँ पे थोड़ा सा explain करते हैं कि ये hypothalamus है. These are your hypothalamic neurons. This is your portal circulation. Here the portal circulation happens. Portal मतलब होता है ना कुछ connection है बेटा. ये organ से ये organ, ठीक है? Either from this organ to this organ, either from this organ to this organ. So of course there are nerves, there are conduction, there are ducts and everything which are going to be connected with each other. ठीक है? Hepatic portal system होता है, kidney से भी होता है basically. तो we name it as किडनी पोर्टल सिस्टम, और देयर आर सम अदर पोर्टल सिस्टम्स आल्सो. पोर्टल सर्कुलेशंस काफी सारे होते हैं. आपके स्टमक से भी पोर्टल सिस्टम अटैच होता है आपके लिवर से. तो लॉट ऑफ कोर्स यार, पहला तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी साथ रहना चाहिए. क्या बना रहे हैं हम आज? एक सेकंड. पूरा का पूरा बॉडी बेटा आपका साथ रहना चाहता है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए तो कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना. एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन से कनेक्टेड, वो ऑर्गन जो है वो तीसरा ऑर्गन से कनेक्टेड, सो ये देयर बाय कनेक्टेड विद दिस ओनली. तो कुछ तो सिस्टम होना चाहिए. तो उस सिस्टम के लिए तो पोर्टल सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट है ना. पोर्टल सिस्टम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. तो यही चीज है. क्लियर है? This is what we have talked about. Portal circulation, posterior pituitary है. Posterior pituitary मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको कहते हैं. ये न्यूरोहाइपोफाइसिस दो प्रकार का चीज प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन. ठीक है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है. हाइपोथैलेमस का बेसल पार्ट ऑफ डायसेफ्लॉन फोरब्रेन में प्रेजेंट है. हर चीज जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस है. एडिनोहाइपोफाइसिस माने एंटीरियर पिट्यूटरी. ये दो प्रकार में पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? MSH क्या प्रोड्यूस करेगा? मेलानिन, राइट. मेलानिन व्हिच इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर स्किन कलर. यहाँ पे हम बात किया था पास डिस्टालिस का, ठीक है. और ये पास इंटरमीडिया, पास डिस्टालिस भी प्रोड्यूस करेगा. ये एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. ये क्या प्रोड्यूस करेगा? GH प्रोड्यूस करेगा, PRL प्रोड्यूस करेगा, LH प्रोड्यूस करेगा, FSH प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. ACTH प्रोड्यूस करेगा, ETC, राइट. तो पास डिस्टालिस हो गया, पास इंटरमीडिया होगा. अच्छा, ये सेला टर्सिकम में प्रेजेंट है, बोनी कैविटी है. तो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने. हाँ, ह्यूमंस के कंडीशन में ये भी पता चला कि पोस्टीरियर एंड एंटीरियर क्या है, कंप्लीटली मर्ज होता है. तो थोड़ा सा विभाजित नहीं करने में थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, ठीक है. दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी. दिस इज वी टॉक्ड अबाउट द हाइपोथैलेमस. 16 पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल द थिंग्स जो मार्क्ड अप है यहाँ पे, और भी डिफरेंट ऑर्गन्स है जो रिस्पांसिबल है. यहाँ पे हार्मोन्स क्या है, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अबाउट द ऑर्गन्स एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन. क्लियर? आई होप यू लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है. हम बहुत जल्दी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट. ज़्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ है. वी आर जस्ट लेफ्ट विद आई गेस पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस एंड adrenal, pancreas also is there, ovarian, testis is also there, and thereafter the hormones and the mechanism of the hormone action. Thereafter we are going to be done with this chapter, but I'm going to make sure कि next वाले video में we are completely done. So I'm just going to make 2 videos of this chemical control and coordination. Here is the first, and very soon we are going to upload the second one. So thanks for watching and keep studying.